Good morning, students. Today our topic is DPSK. DPSK stands for Differential Phase Shift King. DPSK is a advancement in BPSK method. We already discussed BPSK in our previous topics. BPSK is a method in which two reference phases are allocated for representation of level 1 and for representation of level 0. But this DPSK method is somehow different from BPSK. अब जो इसमें डिफरेंस होता है वो हम आगे अभी टॉपिक्स में कवर करेंगे. जब when we discussed BPSK, in that method we have seen that in BPSK receiver we used synchronous detector. Now what is the mean of synchronous detector? Synchronous detector means, or coherent detection means, when we used same carrier frequency in receiver side that we already used in transmitter side, then at that time the receiver is known as coherent detector or coherent reception method. You know, so because in BPSK we used coherent reception, that's why the circuitry of BPSK receiver is very complicated and highly synchronization is required in that circuitry. In BPSK circuitry that we already discussed, the information is stored in the form of phase. The 0-degree phase shift represented that the input is 1, and if there is a 180-degree phase shift, it shows that there is if 180-degree phase shift, then it shows that 0 is transmitted. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बीपीएस के पढ़ते थे तो वहां पे 1 और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो रेफरेंस फेसेस का यूज करते थे. ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो रेफरेंस शेप थे. अगर हमारा इनपुट अगर ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता था, अगर हमारी साइनसॉइडल सिग्नल ऊपर की तरफ से स्टार्ट होती थी, दैट मींस 0 डिग्री फेज शिफ्ट. तो जब भी हमें 1 को रिप्रेजेंट करना होगा हम उसी शेप का यूज करते थे, और जब हमें 0 का रिप्रेजेंटेशन करना होता था तो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 वी यूज 180 डिग्री फेज शिफ्ट. इसका मतलब हुआ कि जब भी हमें 0 का रिप्रेजेंटेशन करना होगा हम अपनी वेवफॉर्म को नीचे से स्टार्ट करेंगे, दैट मींस 180 डिग्री फेज शिफ्ट. ऐसे ही होता था बीपीएसके में. लेकिन बीपीएसके की दिक्कत ये थी, बीपीएसके का डिसएडवांटेज ये था कि वहां पे हम जो कैरियर यूज करते थे या वहां पे हम जो रिसीवर यूज करते थे वो कोहेरेंट रिसीवर था, इसलिए वहां पे जो भी सिंक्रोनाइजेशन के हमें हाईली रिक्वायरमेंट होते थे. ठीक है, so that this drawback is avoided by using DPSK method, that this DPSK we will discuss in this topic. The block diagram for DPSK generation. DPSK stands for differential phase shift king. The block diagram for DPSK is shown here. In DPSK method, the information is stored in the form of difference between two successive bits, difference between phases of two successive bits. इसका मतलब हुआ कि जब हम बीपीएस के पढ़ते थे तो वहां पे इंफॉर्मेशन सिर्फ इन फॉर्म ऑफ फेस स्टोर होती थी, लेकिन इन डीपीएस के जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इन फॉर्म ऑफ फेस डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बिट्स होती है. मतलब जो दो सक्सेसिव बिट्स होते हैं, दो नेबर बिट्स होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम फेस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए 1 और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर 1 आइदर 0, किसी भी एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमें दो नेबर बिट्स का यूज करना होगा. ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा. नाउ the block diagram of DPSK is shown here. Here we used a XOR gate. XOR gate is a logical gate. It is also known as anti-coincidence detector gate. Why it is known as anti-coincidence detector gate? Because it provides output when both inputs are different.
ठीक है। अगर यहाँ पे dt की वैल्यू हम 0 रखें और bt माइनस टी की वैल्यू 1 रखें तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। Is it clear to all of you? Now, this block represent RZ to NRZ converter. Now, what is the mean of RZ to NRZ converter? We know that we can represent 1 and 0 in various ways. Uh, Such as if we get input as 1 and we represent it as plus 1, and if we get input as 0 and we represent it as minus 1, it shows that we convert RZ signal into NRZ signal। ठीक है। यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम ये शो कर रहा है कि सपोज जब भी यहाँ पे इनपुट में 1 आएगा तो RZ टू NRZ कन्वर्टर उसको +1 में कन्वर्ट कर देगा, और जब भी हमारा इनपुट 0 आएगा तो RZ टू NRZ कन्वर्टर उसको -1 में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स जो भी हमारा इनपुट है वो कभी जीरो में स्टेबल नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज नोन एज RZ, दैट्स वाई इट इज नोन एज NRZ। NRZ स्टैंड फॉर नॉट रिटर्न टू जीरो, है ना। यहाँ पे जो इनपुट है कभी भी जीरो में स्टेबल नहीं होगा। Is it clear to all of you? Now, here we mention a delay circuit. The main role of delay circuit is to provide a TB time interval, TB time delay between the BT and the input of XOR gate, है ना। इस BT और इस XOR gate के input में एक TB interval का delay provide करने के लिए we are using a delay circuit here. Now, we have connected a balanced modulator. Balanced modulator is nothing but a mixer circuit. The main work of this mixer circuit is to mix the input of oscillator and the input and the output of NRZ device. Now here we use crystal oscillator circuit for providing a carrier signal. Why we use crystal oscillator? The main purpose of using crystal oscillator is to generate स्टेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। दैट्स वाई फॉर जनरेशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी वी ऑलवेज यूज क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट। नाउ these inputs are provided to the balanced modulator, and after mixing the balanced modulator provides output, and this output is known as DPSK। ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे हमने एक एक्सॉर गेट का यूज किया है। एक्सॉर गेट में जब दोनों इनपुट अलग अलग होते हैं तभी हमें आउटपुट मिलता है। और यहाँ पे जो dt है ये हमारा मेन है डेटा इनपुट। डी स्टैंड्स फॉर डेटा इनपुट, है ना। जो भी हमारा इनपुट है जिसको हमें DPSK में कन्वर्ट करना है वो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? सपोज अगर मेरा इनपुट है 1001 है, तो जो भी इनपुट है हम उसको ऑलवेज हम इस इनपुट पोर्ट से प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जो भी यहाँ पे इनपुट है उसको, जो भी यहाँ पे आउटपुट मिलेगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया BT से। नाउ दिस BT इज प्रोवाइडेड टू द डिले सर्किट एंड द आउटपुट ऑफ डिले इज प्रोवाइडेड टू द एक्सॉर गेट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी इनपुट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, हम जब भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे हम कन्वर्जन के लिए या DPSK में कन्वर्ट करने के लिए, तो इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, है ना। सपोज वी आर प्रोवाइडिंग इनपुट एज 1010, ठीक है। तो इस पोर्ट से तो इनपुट हम प्रोवाइड किया है, लेकिन इस पोर्ट में तो उस समय कोई इनपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उस समय कोई भी आउटपुट नहीं है। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज मैं अपने सर्किट को स्टार्ट किया, सपोज हमने अपने सर्किट को स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करेंगे तो उस समय तो यहाँ पे एक्सॉर गेट के आउटपुट में कोई इनपुट नहीं होगा। एक्सॉर गेट के आउटपुट में तो कुछ भी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि जब हम अपने गेट डिवाइस को स्टार्ट करेंगे तो लॉजिक गेट में डेफिनेटली कोई भी वैल्यू स्टोर्ड होगी ही नहीं, ठीक है। तो उस समय हमें इस लॉजिक, अगर यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ भी स्टोर नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो एक्सॉर गेट है फिर वो वर्क कैसे करेगा? तो इसे वर्क कराने के लिए हमेशा ट्रांसमीटर और रिसीवर के साइड में एक बिट को एज्यूम किया जाता है, जिसे आर्बिट्री बिट कहा जाता है। दिस आर्बिट्री बिट ऑलवेज एज्यूम्ड एज अ सेकेंड इनपुट ऑफ एक्सॉर गेट। हम एक बिट एज्यूम करते हैं, इट मे बी 1, इट मे बी 0, इट डिपेंड्स ऑन द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, है ना। हम यहाँ पे एक बिट यूज करेंगे, वो हम आइदर 1 भी ले सकते हैं, आइदर 0 भी ले सकते हैं। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसको बेस मान के हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल बताता हूं, है ना। व्हाई इट इज नोन एज कोइंसिडेंस डिटेक्टर। वी आर प्लॉटिंग अ टेबल, it is known as truth table. Now what is the difference between truth table and excitation table?
What is the difference between truth table and excitation table? Truth table is a combination of input. On the basis of that we get output. अगर हम किसी भी इनपुट के बेसिस पे आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो टेबल इसे रिप्रेजेंट करेगा दैट टेबल इज नोन एज ट्रुथ टेबल, है ना। अगर हम आउटपुट के बेसिस पे नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे देन दैट टेबल इज नोन एज एक्साइटेशन टेबल। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ हियर वी आर प्लॉटिंग अ टेबल in that we are calculating the output combination on the basis of number of input. That's why it is known as truth table. Clear? We are considering input as dt and bt minus tb. Why? Because the input of XOR gate is it as dt and bt minus tb. That's why we are considering dt and bt minus tb as an input, and the output of XOR gate is bt. That's why we are considering output as bt. Clear? Because of two inputs we are considering four combinations. हमने चार combinations consider किया, that is 0 0 0 1 1 0 and 1 1, है ना। हम यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन कंसिडर कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर बिकॉज वी आर गेटिंग आउटपुट व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। क्योंकि जब हमारे इनपुट डिफरेंट होंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा। तो एक्सॉर गेट की यही वर्किंग होती है ना। तो या जैसे यहाँ पे एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 है तभी हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, और जब हमारे दोनों इनपुट 0 होंगे या दोनों इनपुट सेम होंगे उन दोनों कंडीशन में हमारा आउटपुट होगा 0। क्लियर है? इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी जब हम इस सर्किट को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इसकी वर्किंग समझ में आ गई। नाउ वी स्टार्ट आवर कन्वर्जन फ्रॉम मैसेज सिग्नल टू डीपीएसके, ठीक है। फॉर दिस कन्वर्जन वी आर मेकिंग अ टेबल। दिस टेबल रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ डीपीएसके, ठीक है। सपोज वी हैव अ इनपुट 111 0010। I repeat, we are providing a input signal from this DT terminal and the input is 110010, ठीक है। This input series is provided as a input to this port of XOR gate, ठीक। XOR gate only provides output when we know the value of bt minus tb, but at starting time we don't know what is the value of bt minus tb. That's why we have to consider some arbitrary bit. We can consider it as 1 or we can consider it as 0. So we are considering arbitrary bit as 1. Okay, now the first input combination of our XOR gate is 1 1, and we know that XOR only provide output when both our inputs are different. So here the input are same, that's why we are getting output as 0. Clear? This output is again act as a input of XOR gate after TB time interval. So after TB time interval this BT is act as a BT minus TB. For that representation we are mentioned arrow sign here. Now the input of XOR gate is as 1 and 0. According to it we are getting output as 1. Now this BT is provided as an input to BT minus TB, or BT minus TB is a second input of XOR gate. Now on the basis of these 1 1 we are getting output of XOR gate is 0. Same process is repeats until we get the overall output on the basis of input stream, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम के बेसिस पे जब तक हमें पूरा आउटपुट नहीं मिल जाएगा तब तक ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगा। क्लियर है? जब हमारे पास पूरे इनपुट के बेसिस में हमें आउटपुट यहाँ पे बीटी की वैल्यू मिल गई हमारा प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे आप देखिएगा आई हैव मेड अ ब्लॉक डायग्राम दैट इज RZ to NRZ कन्वर्टर। कुछ बुक्स में इसे मेंशन नहीं किया गया है, आप लोगों को समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक RZ to NRZ कन्वर्टर बनाया है। ऐसा क्यों बनाया है? ताकि आपको समझ में आए कि जो 1 है उसको +1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और 0 को -1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात समझ में आई? प्लस को 1 को +1 और 0 को -1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात यहाँ तक समझ में आई?
अब जब 1 को हम कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता है कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग प्लस साइन टू द कैरियर विथ द कैरियर, देन वी आर गेटिंग 0 डिग्री फेज शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो फेज शिफ्ट होगा वो तो 0 होगा। लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव को जब हम कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एट दैट टाइम वी आर गेटिंग आउटपुट एज 180 डिग्री फेज शिफ्ट, है ना। तो दैट मीन्स कभी भी अगर माइनस होगा तो हमें आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा, है ना। और ये -1 कब आएगा? व्हेन वी आर गेटिंग आउटपुट ऑफ बीटी एज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इन आउटपुट हमारा बीटी की वैल्यू हमारी 0 होगी तो आउटपुट डीपीएसके में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। जब भी हमारी बीटी की वैल्यू 1 होगी तो डीपीएसके का आउटपुट हमारा 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। इज इट क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्लॉट किया है जहाँ पे भी 0 मेंशन किया गया है वहाँ पे हमने पाई मेंशन किया। इट शोज दैट देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और जहाँ पे भी हमारा 1 है वहाँ पे मैंने 0 डिग्री फेज शिफ्ट मेंशन किया है। दैट मीन्स हमारा कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आई? अब ये जो पाई है और 0 है, पाई है जो है ये जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर 0 के बाद पाई आता है दैट मीन्स दो फेज शिफ्ट के दो सक्सेसिव पल्स के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वेवफॉर्म को कंटिन्यूअस बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर है? जब आगे इसका वेवफॉर्म हम देखेंगे तो आप लोगों की ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। नाउ जैसे हमने अभी प्रीवियस टेबल में उस एक आर्बिट्री बिट 0 एज्यूम की थी, नाउ वी हैव टेकन आर्बिट्री बिट एज 0। हमने यहाँ पे आर्बिट्री बिट 1 कंसिडर की थी। वी कैन कंसिडर इट एज 1 और 0 अकॉर्डिंग टू ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, हम इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। वी हैव कंसिडर इट एज 0। नाउ द input of XOR gate is 1 and 0. According to it we are getting output as 1. Now is BT act as a BT minus TB after TB time interval. Now by using XORing operation between 1 and 1, and we are getting output as 0. Now it is provided to the BT minus TB. Now here the both inputs are different, so we are getting output as 1. This process repeats until we are getting output from whole input string. ठीक है, जब तक हमें पूरा आउटपुट ना मिल जाए पूरे इनपुट स्ट्रिंग के लिए तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी व्हेन वी आर गेटिंग आउटपुट एज 0, at that time only we are getting output phase shift as 180 degree, otherwise we are getting output phase shift as 0 degree। ठीक है, जब भी हमारा इनपुट में जब भी हमारा आउटपुट 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन पे है जो हमारा फेज शिफ्ट होगा वो पाइड होगा 180 डिग्री होगा, अदरवाइज इट विल बी 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जहां कहीं भी 0 आया है वहां पे हम डीपीएसके के फेस को पाई डिग्री फेज शिफ्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट किया, अदरवाइज हमने उसके फेस को कोई भी चेंजेस नहीं किया। ठीक है, इज इट क्लियर? In whole process we have considered dt as a data input, bt minus tb as a past output, bt as a present output. Is it clear? Now for we can easily remember the phase difference between the dpsk by using the by using the previous mentioned circuitry. Here we can see that when we are getting the output as 111 or the output as 1 continuously, at that time there is no phase shift, and we are getting phase shift as 180 degree when we are getting output as 0 after 1. That means अगर 1 के बाद 0 आता है तब हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट करना है, लेकिन अगर 1 के बाद 1 ही आ रहा है तो देयर इज नो फेज शिफ्ट। ठीक है, तो इसी को अगर मैं अपने डायग्राम में देखूं और वैसे अगर मैं 0 में चेक करूं तो अगर 0 के बाद 1 आता है तो कोई 0 के बाद अगर 1 आता है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, है ना। लेकिन अगर 0 के बाद 0 ही आता है तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, पाई है तो पाई ही रहेगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करके, इसी डायग्राम का यूज करके आप इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर 0 के बाद 0 ही आ रहा है, when we are getting output as 0, when we have input as 0 0, अगर हमारा
कंटिन्यूस 0 0 इनपुट आ रहा है ना। तो अगर हमारा इनपुट 0 0 है तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम वैसे ही होगा कि हम इसको एक सबसे पहले आर्बिट्री बिट लेंगे, आर्बिट्री बिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम फिर से अगेन इनपुट बिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सॉरिंग करेंगे, और जो भी हमारी एक्सॉरिंग का रिजल्ट आएगा उसको हम वेवफॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फिर से टीबी टाइम इंटरवल के बाद वो इनपुट में हमारे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बात है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको अगर इनपुट के बेसिस में समझना चाहें, क्योंकि जो भी हमारा वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है अगर मैं उसको अपने इनपुट के बेसिस में समझना चाहूँ तो आप यहाँ पे कुछ बातें देख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि सपोज अगर हमारे यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास इनपुट लगातार 1 आ रहा है ना, हम सबसे ऊपर वाली रो को देखिएगा। सपोज अगर हमारा इनपुट लगातार 1 आ रहा है तो यहाँ पे फेज शिफ्ट हो रहा है लगातार, 0 के बाद 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है, 180 डिग्री के बाद फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा जो भी ओवरऑल फेज डिफरेंस है वो 360, दैट मीन 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनपुट अगर लगातार 1 1 होगा तो हमारा आउटपुट में लगातार फेज चेंजेस होंगे। लेकिन अगर इनपुट 1 के बाद 0 आएगा, अगर इनपुट हमारा 1 के बाद 0 होगा तो दोनों के फेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर इनपुट हमारा लगातार 0 0 आएगा तो उसमें भी दोनों में कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? फेज शिफ्ट कब होगा? जब 0 के बाद 1 आएगा तब यहां पे फेज शिफ्ट हो रहा है। ठीक है? तो बाय यूजिंग दिस टेबल वी कैन इजिली रिप्रेजेंट दिस वेवफॉर्म रिप्रेजेंट द डीपीएस के सिग्नल। ठीक है? तो उसी को यूज करने के लिए, उसी को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन किया है। ठीक है? इन समराइज्ड वे वी कैन से दैट इफ नेक्स्ट बिट इज 1 then will be there will be change in polarity, and if next data bit is 0 then there is no change in polarity of the output। ठीक है? ये कंक्लूजन है, जितना भी हम लोगों ने प्रीवियसली टेबल देखा उसके बेसिस पे हम लोगों ने कंक्लूजन मेंशन किया। ठीक है? सपोज अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, नाउ if the phase difference is 0, if the next data is 0, if the next data bit is 0 then there is no phase चेंज, है ना। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर 1 के बाद 0 आ रहा है तो कोई फेस चेंज नहीं होगा, तो लगातार यही फेस चला है। ठीक है? लेकिन अगर नेक्स्ट बिट अगर हमारी 1 आती है, देखिएगा आप यहाँ पे 0 के बाद जैसे हमारे नेक्स्ट बिट 1 आई है तो हमारा 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया। ठीक है? अब 1 के बाद फिर से 1 आया तो फिर से हमारा 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया। ठीक है? लेकिन 0 आया है तो कोई फेस चेंज नहीं हुआ, तो कंटिन्यूस हूँ। 0 के बाद फिर से 0 आया तो हम एक कंटिन्यूस फेस की तरफ बढ़े। 0 के बाद 1 आया तो फिर से 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया, फिर से 1 आया तो फिर से 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया, 0 आया तो कोई फेस शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है? तो जितना भी टीपीएस के रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग अभी प्रीवियसली बनाए हैं उसको समझने के लिए ये जो कंक्लूजन हमने मेंशन किया, ये जो हमने रिजल्ट मेंशन किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कि ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट बिट वी कैन फॉर्म द फेज डिफरेंस, और वी कैन फॉर्म द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीपीएस के सिग्नल, है ना। हम नेक्स्ट बिट के बेसिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बिट अगर 1 हुई तो देयर विल बी फेज चेंज, इफ द नेक्स्ट बिट इज 0 देन देयर विल बी नो फेज चेंज। ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आप लोगों को कंक्लूजन या ये रिजल्ट आप लोगों को जानना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है? अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम बीपीएस के स्टडी किए थे, तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीपीएस के वी ओनली नीड अ सिंगल बिट टू रिप्रेजेंट द फेस। अगर हमारा 1 आता है तो 1 के बेसिस में हम 0 डिग्री फेस शिफ्ट बनाते थे, अगर हमारा इनपुट अगर 0 है तो उसके बेसिस में हम 180 डिग्री का फेस शिफ्ट बनाते थे। ऐसे हमने बीपीएस के रिप्रेजेंट किया। It means that only one bit is responsible to represent the phase, but in DPSK, two successive bits are responsible for representation of डिफरेंशियल फेस, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 2 बिट का यूज करके हम एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट का यूज करके हम एक रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा टी रहेगा, जो भी हमारा एक कॉम्बिनेशन होगा वो 2TB के बराबर होगा, है ना। क्योंकि एक रिजल्ट के लिए, एक फेस डिफरेंस के लिए हमारी 2 बिट्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है? तो इसी के बेसिस में अगर हम बैंडविड्थ फाइंड आउट करना चाहें डीपीएस के सिग्नल की, तो हम जानते हैं कि बैंडविड्थ हमारी 2 FM होती है। अगर f की वैल्यू को हम t मेंशन का f की वैल्यू को अगर हम 1/t मेंशन कर रहे हैं तो इसको हमने डायरेक्टली हम यहाँ पे 1/t मेंशन किया। t की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुटअप किए तो जो बैंडविड्थ होगी हमारी डीपीएसके की, वो हमारी डायरेक्ट f के इक्वलेंट होगी या fb के इक्वलेंट होगी। क्लियर है? दिस fb रिप्रेजेंट द बैंडविड्थ ऑफ डीपीएस के सिग्नल। क्लियर है? ये जो फेस डिफरेंस जो हमने लास्ट में बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसके बिना हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा डीपीएस के और बीपीएस के में।
सिर्फ एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जब हम बीपीएस की स्टडी किए थे पहले, जब हम लोग पहले बीपीएस की स्टडी किए थे, वहां पे जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा इस टाइप के शेप का ही यूज करना है। जीरो कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो नीचे से ही स्टार्ट करना है, वन को कभी रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा वेवफॉर्म को ऊपर से ही स्टार्ट करना है। ऐसा हम लोगों ने बीपीएस के में जो पहले पढ़ा था हम लोगों ने टॉपिक, उसमें किया था। आज का जो टॉपिक है उसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि जो भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका उसके लिए हमारा नेक्स्ट बिट रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपने फेस का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये आर्बिट्री सबसे पहले फेस के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग आर्बिट्री बिट यूज करते हैं। तो आप इसको ऊपर की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको नीचे की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों केस में राइट है फर्स्ट बिट के लिए। ठीक है, फर्स्ट बिट के लिए सपोज मैंने यहाँ पे जीरो की तरफ से स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट बिट हमारी वन है, तो क्या हमने स्टडी किया था, जब भी हमारी नेक्स्ट बिट वन रहेगी, जब भी हमारी नेक्स्ट बिट वन रहेगी तो 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा। तो आइडियली यहाँ से वेवफॉर्म हमारी यहाँ से नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वेवफॉर्म हमारी फिर से ऊपर से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में 180 डिग्री फेस शिफ्ट हुआ, इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब देखिए वन के बाद फिर से वन आया, तो हम जानते हैं कि कभी भी वन अगर नेक्स्ट बिट हमारी वन होगी देन देयर विल बी 180 डिग्री फेस शिफ्ट। तो यहाँ पे ये जो एम बन रही, ये जो डब्ल्यू बन रहा है, ये 180 डिग्री फेस शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हमारी वन के बाद जीरो आ रहा है, अगर नेक्स्ट बिट हमारी जीरो है, तो हमने क्या रिजल्ट पढ़ा वहां पे कि कभी भी अगर हमारी नेक्स्ट बिट जीरो आएगी देन देयर विल बी नो फेस शिफ्ट। तो यहाँ पे दो बिट्स के बीच में, दो सक्सेसिव फेसेस के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री फेस शिफ्ट है। तो इसलिए यहाँ पे ना तो कोई एम बन रहा है ना तो कोई डब्ल्यू बन रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट बिट हमारी वन है, तो क्योंकि नेक्स्ट बिट वन है देन देयर विल बी 180 डिग्री फेस शिफ्ट, और यहाँ पे फिर से 180 डिग्री फेस शिफ्ट हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे फिर से एम फॉर्म करना हुआ है। बात समझ में आई? दो so that the below mentioned waveform is known as DPSK signal and the above mentioned waveform is known as BPSK signal। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना काफी जरूरी है। एक और कि हमें डीपीएसके की जरूरत क्यों पड़ी, डीपीएसके की जरूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज जो भी हमारा बीपीएसके की रिप्रेजेंटेशन के समय जब भी हम रिसीवर सर्किटरी बनाते हैं तो रिसीवर हमेशा कोहेरेंट रिसीवर की जरूरत पड़ती है, और कोहेरेंट रिसीवर में हाईली सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है, और जो भी हमारा कोहेरेंट रिसीवर सर्किट होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें डीपीएसके की जरूरत पड़ी, डीपीएसके मेथड की जरूरत पड़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक थोड़ी लेंदी हो गया है, इसे बार बार अगर एक बार समझ में ना आए तो जो मैंने वेवफॉर्म के टर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है, आप उस वेवफॉर्म के जो भी रिप्रेजेंटेशन है आप उसको बार बार देखेंगे, ये जो भी डीपीएस के वाला टॉपिक है आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।